صبح کے ٹائم پر کچھ سبزی وغیرہ خریدنے کے لیے میں مارکیٹ میں نکلا. جب میں سبزی خرید کر بازار سے واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا جو برف بیچ رہا اور برف کی قیمت لگا رہا ہے 2 روپے کلو. ہم اپنے موجودہ حساب سے بتلا رہے ہیں 2 روپے کلو 2 روپے کلو. علامہ راضی فرماتے ہیں کہ جب میں ظہر کی نماز پڑھانے گیا اور نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو میں نے برف بیچنے والے کو دیکھا. اس کا برف کاسٹلی ہونے کی وجہ سے, مہنگا ہونے کی وجہ سے کوئی خرید نہیں رہا تھا, اس لیے اس نے برف کی قیمت گھٹا دی. 1 روپے کلو 1 روپے کلو سستا ہی بکے لیکن بک تو جائے. کہتے ہیں کہ جب میں عصر کی نماز پڑھا کر واپس آ رہا تھا تو میں نے دیکھا برف بیچنے والا برف کو 1 روپے کلو سے بھی کم کر دیا, 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو 50 پیسے کلو. علامہ راضی کہتے ہیں کہ جب میں مغرب کی نماز پڑھانے کے لیے گیا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا نماز پڑھا کر جب واپس آ رہا تھا تو برف بیچنے والے نے 50 پیسے سے بھی اس کی قیمت گھٹا دی اور اس کی قیمت رکھ دی 25 پیسے کلو 25 پیسے کلو. عشاء کی نماز کے بعد جب میں بستر پہ آ رہا تھا گھر کی طرف جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ برف بیچنے والا آواز دے رہا ہے لوگوں میرا برف فری میں لے جاؤ. گھلنے سے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ تمہارے بیوی بچے اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں, کچھ دعائیں دے دیں. اگر 25 پیسے کلو بھی آپ کو مہنگا لگ رہا ہے تو یہ فری میں لے جاؤ. میرا برف برباد ہو جانے سے بہتر ہے کہ کسی کے منہ لگ جائے. میرے برف کو گھلنے اور پگھلنے سے بہتر ہے کہ آپ لوگ اس کا ٹھنڈا پانی پی لیں. امام راضی کہتے ہیں جب میں گھر آیا کھانا نہ کھانے کے بعد جب میں بستر پر لیٹنے کے لیے چلا قرآن کی چند آیتیں پڑھ کر سونے کا میرا معمول تھا. جب میں قرآن پڑھ کر سونے کے لیے جانے لگا قرآن کی جب میں چند آیتوں کی سورتوں کی تلاوت کرنے لگا تو پڑھتے پڑھتے بستر پر میرے سامنے قرآن کی یہی سورت آ گئی والعصر ان الانسان لفی خسر. زمانے کی قسم روئے زمین پر جتنی بھی انسانیت ہے سب نقصان کے اندر ہے. آج میں سمجھ گیا کہ اللہ رب العالمین نے ساری انسانیت کو نقصان میں کیوں بتایا. جیسے جیسے برف پگھلتا جاتا ہے گھلتا جاتا ہے ویسے ویسے اس کی قیمت بھی کم ہوتی چلی جاتی ہے. برف گھلتا جا رہا ہے اس کی قیمت کم ہوتی جا رہی ہے. اسی طریقے سے انسان بھی 1 دن 2 دن 1 ہفتہ 2 ہفتہ 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال جیسے جیسے وہ گزارتا جا رہا ہے اس کی زندگی بھی برف کی طرح پگھلتی جا رہی ہے. اس کی زندگی بھی برف کی طرح گھلتی جا رہی ہے. اس کی زندگی بھی برف کے مانند کم ہوتی جا رہی ہے. جیسے برف گھلتا جاتا ہے انسان کی زندگی بھی گھل رہی ہے. 1 مہینے پہلے جن لوگوں نے مجھے سنا آج جو مجھے سن رہے ہیں آپ کا سننا اور میرا یہاں آنا اس بات کا میسج دے رہا ہے کہ جرجیس تم اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہو اور آپ بھی اپنی زندگی کا 1 مہینہ کم کر چکے ہیں. 10 سال پہلے میرا جن لوگوں نے پروگرام سنا اور آج بھی سن رہے ہیں ہماری اور ان کی زندگی میسج دے رہی ہے کہ جرجیس تم بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہو. جو سن رہے ہیں وہ بھی اپنی 10 سال کی زندگی کم کر چکے ہیں. اور انسان جیسے جیسے 1 2 دن 1 مہینہ 2 مہینہ 1 سال 2 سال گزار رہا ہے نا وہ حقیقت میں زندگی نہیں گزار رہا ہے اتنا ہی وہ اپنے قبر کے قریب ہو جاتا ہے. ہم اور آپ اتنا ہی اپنے قبر کے قریب ہو گئے. انسان کی منزل وہی ہے. 100 بیگھہ زمین آپ کی ہو 5 ایکڑ زمین کے آپ مالک ہو کتنی ہی زمین آپ کی ہو حقیقت میں یہ زمین آپ کی نہیں ہے. آپ مریں گے اس پر کسی اور کا قبضہ ہوگا. ہماری اور آپ کی اوریجنل زمین وہی 2 گج ہے.
جو مرنے کے بعد بھی اپنا دعویٰ واپس نہیں. اور وہی 2 گز زمین میں ہمیں اور آپ کو دفن ہونا ہے. اس لیے آدمی یہ یاد رکھے کہ وہ 5 ایکڑ زمین کا مالک نہیں ہے, 100 بیگھہ زمین کا مالک نہیں ہے. ہم حقیقت میں اسی 2 گز زمین کے مالک ہیں جس میں ہمیں رہنا ہے, جس میں ہمیں جانا ہے, اور ہم اسی کے قریب ہو گئے. اور 2 ہی ٹھکانے ہیں, جنت یا جہنم, بیچ کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہماری نیکیاں اور ہمارے گناہ دونوں برابر برابر کر دیے جائیں, نہ مجھے جنت ملے نہ مجھے جہنم ملے, تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. مجھے بیچ میں ڈال دیا جائے, نہ جنت ملے نہ جہنم ملے, اگر بیچ میں رکھ دیا جائے تب بھی میں یہ سمجھوں گا کہ میں خوش نصیب ہوں. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. 2 ہی ٹھکانے, جنت یا جہنم. ہم اور آپ 1 سال 2 سال جو گزار کر آگے بڑھ جاتے ہیں, حقیقت میں اپنی جنت کے یا اپنی جہنم کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں. حقیقت یہی ہے کہ ہم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو رہے ہیں یا اپنی جہنم کے. اور اللہ نہ کرے اگر ہم اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے 1 سال 2 سال 10 سال 20 سال اگر اپنی جہنم کے قریب ہو رہے ہیں تو اس سے بڑا نقصان ہمارا اور آپ کا کیا ہو. کیا اس سے بھی بڑا کوئی نقصان ہو سکتا ہے؟ اسی لیے علامہ راضی نے کہا ہے کہ میں سمجھ گیا اللہ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی, کیونکہ جس طرح برف گھل رہا ہے اسی طریقے سے 1 سال 2 سال زمانہ بھی برف کی طرح پگھل رہا ہے. ہم اپنی زندگی کم کرتے چلے جا رہے ہیں, ہم اپنی زندگی کم کرتے جا رہے ہیں. برف کی مانند ہماری زندگی پگھلتی جا رہی ہے, برف کی مانند ہماری زندگی پگھل رہی ہے. ہم اپنی قبر کے قریب ہو رہے ہیں. سکندر بادشاہ 6 مہینے حکومت کیا کرتا تھا اور 6 مہینے وہ جنگل میں اپنی زندگی بسر کیا کرتا تھا. جنگل میں چشمدید لوگوں نے رات میں سکندر بادشاہ کو دیکھا. 1-2 لوگوں نے سکندر بادشاہ کو جنگل کے اندر ٹوٹی اور پھوٹی ہوئی قبر کے پاس, قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھا ہوا دیکھا. اور یہ بڑبڑاتے ہوئے لوگوں نے سنا کہ سکندر بادشاہ اس قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کے پاس بیٹھ کر یہ کہتا جا رہا ہے, اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی, اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میرے جیسی تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. وہ یہ بول بول کر اپنی موت کو یاد کر رہا ہے. وہ قبر کی بوسیدہ ہڈیوں کو, سڑی ہوئی ہڈیوں کو دیکھتا ہے اور کہتا جاتا ہے, اے ہڈیوں کل تم میری طرح تھی اور کل میں تمہارے جیسا ہو جاؤں گا. اسی لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فزوروا القبور فإنکم تذکرکم الموت. لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو, تم قبروں پہ جایا کرو, اس لیے کہ قبروں کی زیارت کرنے سے تمہیں وہاں جا کر اپنی موت یاد آئے گی, تمہیں اپنا ٹھکانہ یاد آئے گا, تمہیں اپنا مسکن یاد آئے گا, تمہیں اس جگہ آنا ہے. یہ قبریں تمہیں یاد دلائیں گی کہ تمہارا ٹھکانہ یہ ہے. سکندر بادشاہ کے اس وظیفے سے سیکھو, اس ورد سے سیکھو کہ وہ کس طریقے سے اپنی موت کو یاد کیا کرتا تھا. ہم اور آپ دھیرے دھیرے قبر کے قریب جا رہے ہیں. ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں, ترمذی شریف ابواب الزہد کے الفاظ ہیں. فرمایا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, بادروا بالاعمال سبعا هل تنتظرون الا فقرا منسيا او غنى مدغيا او مرضا مفسدا او هرما مفندا او موتا مجهدا او الدجال فشر غائب ينتظر او الساعة فالساعة ادهى وامر.
तिरमिज़ी अब्वाब ज़ुहद के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी फरमाते लोगों 7 चीजों के आने से पहले नेक अमाल कर लो। इन 7 चीजों का तुम इंतजार न करो, इन 7 चीजों का इंतजार न करो। हल तंतज़िरूना इल्ला फ़क़रम मुनसिया, क्या तुम ऐसी फकीरी का, ऐसी गुर्बत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सब कुछ भुला दे। पैसा दिया अल्लाह ताला ने, क्या तुम फकीरी का इंतजार कर रहे हो तब इबादत करोगे? मैंने गुजरात की सरजमीन पर प्रोग्राम किए हैं, आज चलिए आप। वो अहमदाबाद 2002 से पहले जिनके करोड़ों के शोरूम हुआ करते थे और जिन्होंने मुझे अपने शोरूम पर बैठाकर चाय पिलाई थी, नाश्ता कराया था, मैं उन शोरूम के मालिकों को आज भी जानता हूं। लेकिन 2002 के दंगे के बाद यकतरफा उस चपेट में दंगाइयों के और जो लोग आए और मोहल्ले के मोहल्ले खाली कर दिए गए, दुकानें जला दी गईं, औरतें बेवा कर दी गईं, बच्चे यतीम कर दिए गए, उनके शोरूमों में आग लगा दी गई, मकान जला दिए गए। कुछ महीने कैंप में रहे, खैमे डाल कर रहे, और आज उनका हाल यह है। फिर कुछ साल दूसरों के रोटियों के टुकड़ों पर पले, और आज उनमें बहुत से ऐसे हैं कि या तो प्याज और आलू के ठेले लगा रहे हैं या रिक्शा चलाकर अपना गुजर बसर कर रहे हैं। जो कल तक करोड़ों के मालिक थे, आज वो सब्जियां बेच रहे हैं और रिक्शा चला रहे हैं। अल्लाह ताला ने तुम्हें दौलत दी है, अल्लाह ताला ने तुम्हें नवाजा है, तो क्या तुम ऐसी गरीबी का इंतजार कर रहे हो? जब ये भुखमरी तुम्हारे पास, ये गरीबी तुम्हारे पास आ जाएगी जो तुम्हें सब कुछ भुला देगी, तब इबादत करोगे अल्लाह की। दूसरी चीज, औ गिनन मुदगिया, गरीब हो, अभी टाइम है तुम्हारे पास, अभी वक्त है तुम्हारे पास, क्या तुम ऐसी अमीरी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? मैंने उन गरीबों को भी देखा है जिनके पास कुछ नहीं था, सुबह खा लो तो शाम को नहीं, और शाम को खा लो तो सुबह नहीं, और अचानक अल्लाह ताला ने छप्पर फाड़ के उनको दौलत दी। आज उनका हाल यह है कि एक हाथ में मोबाइल है, दूसरे हाथ में सिगरेट है। मोबाइल पर कह रहे हैं हाँ ठीक है, इतना ट्रक माल भेज दीजिए, यहाँ आने के बाद हम पैसा दे देंगे, और सिगरेट पीते जा रहे हैं और उसकी राख अपने टेबल पर रखी हुई एक डिब्बी में डालते जा रहे हैं। ऐसे अमीरों को भी मैंने देखा है जिनसे कहा जाए चलो अजान का वक्त हो गया, नमाज की तरफ चले, चलिए अब मैं आ रहा हूं, तेरा 4 ट्रक माल आ रहा है, जब तक ये आ नहीं जाएगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा। पता नहीं ऐसा ना हो कि पुलिस पीछा कर रही हो, पकड़ ले। क्या ऐसी दौलत का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें सरकश बना दे? औ मरज़न मुफ्सिदा, तंदुरुस्त हो इबादत कर लो। क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बिस्तर पे लिटा दे? तंदुरुस्त हो, अजान की आवाज आई, मस्जिद में जा सकते हो, क्या ऐसी बीमारी का इंतजार कर रहे हो? अचानक जा रहे हो भिख मंगनी गाड़ी पर बैठकर, भिख मंगनी गाड़ी जानते ना, जहेज वाली गाड़ी पर जो लड़की के बाप ने दी है इंटरनेशनल भिखारी समझकर, उस गाड़ी पर बैठकर जा रहे हो, हुर मारी ब्रेकर से उछली गाड़ी, गिरे, टूट गई टांग, हॉस्पिटल में लटकी हुई है, प्लास्टर चढ़ा हुआ है। मौलाना जर्जी साहब देखने जा रहे हैं, साहब क्या, अजान की आवाज आ रही है, अब जाओगे नमाज पढ़ने? जब तंदुरुस्ती थी तब नहीं गए, अब जाओगे नमाज पढ़ने? साहब ठीक है, अल्लाह तुम्हें शिफा दे। अब मौलाना साहब जैसे उठ रहे हैं वैसे पकड़ लिया, तो क्या हुआ? मौलाना मस्जिद में दुआ करा देना, अल्लाह ताला शिफा दे। टांग टूट गई, रीढ़ की हड्डी तक उसका असर हो गया, बिस्तर पे पड़े हो, अब जाओगे इबादत करने? औ हरमन मुफनिदा, चौथी चीज, जवान हो जवानी में इबादत कर लो। क्या ऐसे बुढ़ापे का इंतजार कर रहे हो जो तुम्हें बूढ़ा, जो तुम्हारी अकल को जाहिल कर दे? कभी एक तो बुढ़ापा होता है और एक वो बुढ़ापा होता है पता ही नहीं हम कर क्या रहे, वुजू खाने पे बैठे हैं,
पता नहीं 3 बार धो रहे हैं कि गिनती याद नहीं, नमाज पढ़ने खड़े हुए पता नहीं 4 रकात पढ़ रहे हैं कि 10-12 ठोक डाले, 2 सजदे करना है कि 10 सजदे करना है, बस सजदे करते चले खड़े, अल्लाह अकबर पढ़ना, अल्लाह बाइद नहीं पढ़ना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अब पढ़ रहे हैं सुभान रब्बिल आला, सुभान रब्बिल आला। सजदे में घुस गए तो पता नहीं चल रहा क्या पढ़ रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन रहमान रहीम। अब इबादत करोगे जब अकल ही खराब हो गई, हरामन मुफनीदा, क्या ऐसे बुढ़ापे में इबादत करोगे जो तुम्हारी अकल को खराब कर दे? जब तो मरफूल कलम हो गए, तुम्हारी नेकियां नहीं लिखी जा रही, तुम्हारे गुनाह नहीं लिखे जा रहे, अल्लाह तुम्हारी जिंदगी का फैसला करेगा, अब तुम इबादत करोगे अल्लाह की। 4 चीजें, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो, पहली चीज। अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, दूसरी चीज। दोनों अलग अलग, गरीब हो तो अमीरी का इंतजार मत करो और अमीर हो तो गरीबी का इंतजार मत करो, ये 2 अलग अलग चीजें। तंदुरुस्त हो तो बीमारी का इंतजार मत करो और जवान हो तंदुरुस्त हो तो अकल को खराब कर देने वाले बुढ़ापे का इंतजार मत करो। 4 चीजें। और मौतन मुजहिजा, क्या अचानक आ जाने वाली मौत का इंतजार कर रहे हो? मर जाओगे तब अल्लाह की इबादत करोगे, अचानक मौत तो कभी किसी की आ सकती है। जर्जीत साहब आज यहाँ है, कल का प्रोग्राम कहीं और है, लेकिन जर्जीत साहब को प्रोग्राम की तारीख दी है लेकिन कंफर्म नहीं है और गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता है कि मैं कल के जलसे में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा। अचानक मौत किसी की भी आ सकती है। जा रहे हैं, अटैक कभी भी पड़ सकता है, गए। और याद करो जामिया सल्फिया बनारस के उस जबरदस्त बड़े आलिम को डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलाफी मदनी, जिनके नाम के आगे आज लगाना पड़ता है रहमतुल्लाह अलैह, गए थे बंबई में दीने रहमत कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने। जलसे में तकरीर हुई, उनकी कज़ा और कदर के मौजू पर बोले और जैसी तकरीर करके हटे, सीने में दर्द हुआ, हॉस्पिटल तक ले जाया गया। हॉस्पिटल ले जाने से पहले रास्ते ही में इंतकाल हो गया। जलसे में गए, सोचा था कभी कि हम घर वापस नहीं आ पाएंगे। और मौतन मुजहिज, अचानक मौत। अल्लाह उनकी कब्र को नूर से भर दे, गरीक़ रहमत फरमाए, उनकी रूह को आला इल्लीन के अंदर जगह अता फरमाए। मेरे प्यारे साथियों, ये किसके साथ नहीं हो सकता है? कोरोना में कैसे कैसे हमारे जमात के बड़े बड़े आलिम इस दुनिया से चले गए। 40-40, 45-45 साल की उम्र और चले गए। तसव्वुर नहीं कर सकते आप। अभी एक और बीमारी नई निकली है, ये वैक्सीन वालों को भी नहीं छोड़ रही है। और देखते रहिएगा, आलिमुल गैब तो नहीं हूं लेकिन अब तक के हालात बतला रहे हैं। यूपी का जब चुनाव होगा, अगर 3 या 4 चरणों में चुनाव हुआ, 5 चरणों में हुआ, तो 4 चरण तक तो ठीक चलेगा, लेकिन 5वीं चरण का या 6ठी चरण का जब चुनाव होगा तो उसमें यह लहर बहुत तेजी के साथ आएगी। और ये आएगी नहीं, लाई जाएगी। और लाने वाले 2 ही आदमी हैं, नाम नहीं लूंगा, आप समझ गए हैं, समझदार हैं। मेरे भाइयों देखिएगा ये लहर कब आएगी, किस वक्त आएगी, कैसे आएगी, किस टाइम पे आएगी। ये सब सेटिंग पहले से है, क्योंकि यूपी को दोबारा हासिल करना है। क्योंकि बंगाल से तो तमाचा पड़ा है, ठोकर लगी है, सर अभी जमीन पे गड़ा हुआ है, सर उठा नहीं पा रहे हैं। इसलिए यूपी को किसी तरीके से जीतना है, किसी भी तरीके से। अगर यूपी चला गया इनके हाथ से तो दिल्ली जाना तय। इसलिए यूपी किसी तरीके से ये जाने नहीं देंगे। इसके लिए कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी आएगी। चुनाव के 2-3 चरण हो जाने के बाद 4थे या 5वें चरण में इसकी भयानक लहर फैलेगी। किसकी तरफ से फैलेगी? और ये कुछ कुत्ते जो हड्डियां डाल देने के बाद इनकी चोंचें चलेंगी,
मीडिया वाले, और वो कुत्ते कौन है मैं नाम भी नहीं लूंगा, और वो कुत्ते खुद समझ जाएंगे कि कुत्ते किसको कहा गया है। वो अच्छी तरीके से जानते हैं। जिनको आप गोदी मीडिया कहो या जिसको भक्त मीडिया कहो, जो कहना चाहो कहो, हमारी नजर में हड्डियों को खाने वाली, सड़ी हुई हड्डियों पे गिरने वाली ये मीडिया, देखिएगा इस लहर को कैसे सुनियोजित तरीके से और ढंग से फैलाएगी, और उसी में सब गड़बड़, सब उसी में होगा गड़बड़। तो मौतन मुजिज़ा, अचानक मौत कभी भी आ सकती है। उस मौत के आने से पहले इबादत कर लो। 5 चीजें। अब दज्जाल फशर्रु गाइब युंतज़र, दज्जाल के आने से पहले, खुरूज दज्जाल से पहले नेक अमाल कर लो। जब दज्जाल निकल जाएगा, आ जाएगा, तब तुम नेक अमल करोगे। जब तुम्हारी नेकियों के दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे, तब नेक अमाल करोगे। गायब फितनों में, गायब चीजों में सबसे बड़ा फितना इसी खुरूज दज्जाल का है। दज्जाल से बड़ा कोई फितना नहीं है गायब चीजों में। ये 6ठी चीज है। और 7वीं चीज, अब इसका क्या कयामत आ जाएगी तब तुम नेक अमाल करोगे? कयामत के आने से पहले नेक अमाल कर लो। कयामत के आने से पहले मेरे भाइयों, कयामत के आने से पहले नेक अमाल। वो कयामत जिसका चर्चा हर जगह है, वो कयामत जिसको बाइबल में डे ऑफ जजमेंट के नाम से जाना गया है, वो कयामत जिसको हम हिंदू धर्म के शास्त्र और वेदों के मुताबिक परलय और महापरलय के नाम से जानते हैं, जिसके बारे में यह कहा गया है कि न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। ये ऋग्वेद के अंदर, ऋग्वेद भूमिका में लिखा हुआ है। न पुत्र पिता को देखेगा, न पिता पुत्र को देखेगा। बस इतना। इसी को हमारे कुरान ने यूं कह दिया, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। उस दिन एक इंसान भागेगा, यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही, अपने भाई से भागेगा, व उम्मिही व अबीही, एक इंसान अपनी मां से भागेगा, अपने बाप से भागेगा, व साहिबतिही व बनीही, अपनी बीवी से भागेगा और अपने बेटों से भागेगा। एक आदमी है, भाई को देखकर भागेगा कि ये मुझसे एक नेकी न मांग बैठे। बेटा अपनी मां को देखेगा, भागेगा कि मेरी मां मुझसे कहीं एक नेकी का सवाल न कर ले। अपने बाप को देखेगा तो भागेगा कि ये मेरा बाप मुझसे सवाल न कर ले। अपनी बीवी को देखेगा, जिस बीवी के बिना दुनिया में एक पल नहीं रह पाता था, उस बीवी को देखेगा तो छिप जाएगा, मुझसे मेरी बीवी कहीं एक नेकी न मांग बैठे। अपनी औलाद, जिसके हल्के से पेट के दर्द, हल्का सा पेट का दर्द आपकी रातों की नींद उड़ा देता है, हल्का सा फीवर, हल्का सा टाइफाइड आपको रात के 2 बजे और 3 बजे अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने पर मजबूर कर देता है, आपको अपनी नींद से बेदार कर देता है। उस बेटे का प्यार जो आज आपको इतना ज्यादा है, कयामत के दिन इस बेटे को देखकर इंसान भागेगा, ये मेरा बेटा मुझसे कोई नेकी न मांग बैठे। यौम यफिर्रुल मर्उ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। वेद कहता है पुत्र अपने पिता का न होगा, पिता अपने पुत्र को न देखेगा। मेरे भाइयों, ये एक ही चीज है, कुरान ने थोड़ा तफसील से बयान कर दिया है। वो कयामत कि जिसके बाद, जिस दिन हमें और आपको दोबारा जीवित किया जाएगा, दोबारा जिंदा किया जाएगा, कब्र से उठाया जाएगा और हिसाबो किताब लिया जाएगा। हाँ, ये वही दिन है जिसको वेदों ने कहा है मृत्यु पश्चातम द्वितीय जन्मम भवति, ने तृतीय ने चतुर्थ ने पंच ने षष्ठ ने सप्त ने अष्ट ने नवम ने दशम का। मरने के बाद तुम्हारा एक दूसरा जन्म होगा, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, न छठा, न सातवां, न आठवां, न नवां, न 10वां। यानी मरने के बाद तुम्हें दोबारा जीवित किया जाएगा। हिंदू धर्म में 7 जन्म है ना,
کہتے 7 جنموں تک ہم تمہارے رہیں گے. اس لیے پھیرے لگائے جاتے ہیں عورت کے جب شادی ہوتی ہے پتی کے ساتھ. کتنے پھیرے لگتے ہیں؟ 7. 7 پھیروں کا مطلب جانتے ہو؟ 7 جنم تک تم ہماری ہو ہم تمہارے. 7 جنم ہندو دھرم میں 7 جنم، جبکہ معلوم نہیں ہے کہ اگلا جنم کس کا ہوگا، لیکن 7 جنم ہے ہندو دھرم میں. وید منع کر رہا ہے، وید کہہ رہا ہے ایک دوسرا ہی جنم ہوگا. منوسمرتی اور بھاگوت پران وغیرہ کہتے ہیں کہ 7 جنم ہوں گے، لیکن وید منع کرتا ہے. وید کہتا ہے 7 جنم ہے ہی نہیں، ایک ہی جنم ہے، مرنے کے بعد دوسرا جنم، جس کو پنرجنم کہتے ہیں، قبر سے دوبارہ اٹھنا. یہ پنرجنم کو ہم بھی مانتے، دوبارہ جیوت ہونا ہم بھی مانتے ہیں مرنے کے بعد، لیکن آواگمن کے ہم قائل نہیں ہیں. آواگمن چوری کرو گے تو بلی بنو گے، جوا کھیلو گے تو بھینس بنو گے. یہ ہندو دھرم میں آواگمن ہے. یہ اچھے کرم کرو گے تو انسان اور برے کرم کرو گے تو کتا، بلی، چوہا، بندر، چھچوندر. یہاں تک لکھا ہوا ہے کہ یہ گناہ کرو گے تو آلو بنو گے، یہ کرو گے تو کدو بنو گے، یہ کرو گے تو کٹہل بنو گے. اب وہ ساری ہمیں یاد تھوڑی ہیں، لیکن چار تو ایسے گناہ ہمیں یاد ہیں جو منوسمرتی کے بارے میں ادھیائے میں ہے. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو نہیں، رشوت کھاؤ گے تو کتے کا جنم ہوگا، چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا، اور کسی لڑکی پر اگر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ ہندو دھرم میں 4 ہے، تو بہت پوری ایک لسٹ ہے، لیکن ہمیں 4 ہی یاد ہے. اور بھی لکھا ہے یہ کرو گے تو چاول کا ہوگا، یہ کرو گے تو ہرا دھنیا بنو گے، یہ کرو گے تو ہری مرچیں بنو گے، یہ کرو گے تو گوبھی بنو گے، یہ کرو گے تو پتا گوبھی بنو گے. پورا ہے، دال چاول اور گھی چینی شکر سب لکھا ہے. لیکن یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات نہیں ہے. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، تھوڑی سی عقل دوڑاؤ گے تو آپ گر جاؤ گے. تھوڑا سا عقل پہ زور لگاؤ. جوا کھیلو گے تو بھینس کا جنم ہوگا، الٹا مفہوم نکالو. جوا نہ کھیلو گے تو بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اس کا مطلب دنیا میں جتنی بھینسیں ہیں یہ پہلے انسان تھیں. یہی تو مطلب ہوا، پہلے انسان تھیں، انہوں نے جوا کھیلا ہوگا تو ان کو بھینس کا جنم ہوا ہے. اگر دنیا میں کوئی آدمی جوا ہی نہ کھیلے تو پھر بھینس کا جنم نہیں ہوگا. اور بھینس کا جنم نہیں ہوگا تو دودھ نہیں ملے گا، گھی نہیں ملے گا، مٹھا نہیں ملے گا، دہی نہیں ملے گا، چھاچھ نہیں ملے گا، پنیر نہیں ملے گا. مطلب کیا ہوا؟ یہ ساری نعمتیں کھانا ہے تو جوا کھیلو. یہی تو نتیجہ نکلتا ہے. تو یہ کچھ سمجھ میں آنے والی بات ہے. کسی لڑکی پر غلط نظر ڈالو گے تو اگلا جنم لڑکی کا ہوگا. یہ جلسے میں جتنی آئی ہیں یہ سب پہلے مرد تھیں. انہوں نے کسی لڑکی کو غلط نظر سے دیکھا ہوگا تو ان کو لڑکی کا جنم ہوا. اب دماغ سے سوچو کہ اگر دنیا میں کوئی آدمی کسی کو غلط نظر سے نہ دیکھے، سب کو ماں بہن بیٹی کی نظر سے دیکھے اور کوئی غلط نظر نہ ڈالے، تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ پھر لڑکی کا جنم ہی نہیں ہوگا. جب لڑکی کا جنم نہیں ہوگا تو پھر بچے کہاں سے پیدا ہوں گے، نسل کہاں سے بڑھے گی؟ یوگی جی تو خود ہی سنیاس لیے بیٹھے ہیں، مودی جی کی ہے ہی نہیں، اور زبردستی جنہوں نے پیار کیا وہ آسارام بنے بیٹھے ہیں. تو اب آپ بتائیے پھر نسل کہاں سے بڑھے گی؟ ایک دماغ لگا کے سوچیے، عقل میں آنے والی بات ہے. چوری کرو گے تو بلی کا جنم ہوگا. ہم نے آپ کا 2-4 تولہ سونا چورا لیا، پکڑے گئے، پولیس نے اندر کر دیا. جب تک اندر ہیں تب تک ہم چوری تو نہیں کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے، ایشور نے اگر ہم کو چوری کے جرم میں بلی بنا دیا تو یہ سزا کمزور ہے. کیونکہ انسان تھے تو سونا چراتے تھے، دولت چراتے تھے، پیسہ چراتے تھے. اب اللہ نے بلی بنا دیا تو اب آپ کی مرغی چرا رہے ہیں، کسی کا کبوتر چرا رہے ہیں. چوری تو ابھی بھی جاری ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ اللہ کی سزا کمزور ہے، ایشور کی سزا کمزور ہے. اس سے تو سخت ہماری
जेल वाली सजा है। और एक चीज, रिश्वत खाओगे तो कुत्ते का जन्म होगा। कभी कभी हम देखते हैं ना, ये रोडों पर जो खड़े होते हैं, ट्रक गुजर रहे हैं, 100 रुपए लिया, ट्रक गुजर गया, तो ये सड़कों पर जो कुत्ते होते हैं, तो मैं सोचता हूं ये वही रिश्वतखोर हैं जो 100 रुपए लेकर ट्रक छोड़ते जा रहे हैं। और कुछ कुत्ते इतने स्टैंडर्ड हैं जो कुत्ते होने के बाद भी सड़कों पर नहीं, वो 18, 20, 25 साल की कॉलेज की लड़कियों की गोद में स्वीटी लवली बनकर बैठे हुए हैं और वो उनको चूम रहे हैं, पप्पी चम्मी सब, और एसी गाड़ियों में सफर कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि ये कितना बड़ा, ये जरूर कोई पार्लियामेंट का नेता रहा होगा, इसने बड़ा घोटाला और बड़ी रिश्वत खाई होगी, तब इसको ये जन्म हुआ है। और ये 100, 200 रुपए लेके छोड़ने वाले ये रोड वाले कुत्ते हैं जो इधर घूमते हैं, इनको कम छोटी रिश्वत तो छोटी नस्ल के कुत्ते, बड़ी रिश्वत तो बड़ी नस्ल के कुत्ते। ये आपकी किताब कह रही है, बताइए आप, मनुस्मृति कह रही है, यकीन कैसे आए? लेकिन वेद इसका खंडन करता है। वेद कहता है बिल्कुल नहीं, मरने के बाद इंसान दोबारा एक ही जन्म लेगा। ने तृतीय, ने चतुर्थ, ने पंच, न तीसरा, न चौथा, न पांचवा, ने षष्ठ, न छठा, ने सप्तमा, सातवां, ने अष्ट, न आठवां, ने नवम, न नवा, न दशम का, न दसवां। मरने के बाद इंसान का तीसरा, चौथा नहीं, पांचवा नहीं, छठा नहीं, सातवां नहीं, आठवां नहीं, नवा नहीं, दसवां नहीं, कोई जन्म नहीं होगा। मरने के बाद एक दूसरा ही जन्म होगा, जहां उसको उसके कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा। इसी को कुरान कहता है, अयहसबुल इंसानु अय्युद्रका सुदा अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना सुम्मा काना अलक़तन फखलक़ फसव्वा फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता। क्या है इंसान, तो ये तसव्वुर करता है कि तुझे ऐसे ही बगैर हिसाब किताब के छोड़ दिया जाएगा? नहीं नहीं। अलम यकुन नुतफतम मिन मनी युमना, क्या तो शुरू में मनी का कतरा न था? क्या तो शुरू में एक हकीर और जलील पानी की बूंद न था जो रहमे मादर तक पहुंचाया गया, जो औरत के बच्चेदानी तक पहुंचाया गया? फिर अल्लाह ताला ने उसी पानी के कतरे से तेरी मजबूत खोपड़ी बनाई और उस खोपड़ी में इतना नरम भेजा बनाया, 2 उंगलियों के बीच में रख के मसलना चाहो तो मसल दो। धड़कने वाला दिल बनाया, उंगलियां बनाई, पोर बनाए, पैर बनाया, पिंडली बनाई, घुटना बनाया, रान बनाया, पेट बनाया, पीठ बनाई, रीढ़ की हड्डी बनाई, नाक बनाई, आंख बनाई, हजारों तारों का कनेक्शन डाल कर दो चमकते हुए ट्यूबलाइट, आंखों में रोशनी डाल दी, समझने वाला दिमाग दे दिया। जब हम ये सब काम कर सकते हैं पहली बार, फजअल मिनहु ज़ौजैनि ज़कर वल उन्सा, नर और मादा भी बना दिया, लड़का और लड़की भी बना दिया। है इंसानों, तो तुम बताओ, जब मैं पहली बार ऐसा कर सकता हूं तो क्या दोबारा हम तुम्हारे मरने के बाद हम तुम्हें जीवित नहीं कर सकते? अलैसा ज़ालिका बिक़ादिरिन अला अन युह्यियल मौता, तो क्या मैं मरने के बाद हम तुम्हें दोबारा जीवित नहीं कर सकते? जब पहली बार हमारे लिए करना आसान है तो दोबारा तो और ज्यादा है। तो मेरे भाइयों, इस चीज को ज़हन में रखिए, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, हम खसारे की तरफ जा रहे हैं। अल्लाह न करे अगर हम जहन्नम के करीब हो रहे हैं, अपनी उम्र गुजार रहे हैं और एक एक दिन करके अगर हम कब्र के करीब जा रहे हैं और जहन्नम के करीब हो रहे हैं, तो इससे बड़ा खसारा कोई नहीं है। 2 चीजें आगे, 4 चीजें पेश की गई, इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। इसमें 2 चीजें एक साथ और 2 चीजें एक साथ। इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, जो ईमान लाए और जिन्होंने अमल सालिह किए, ये दोनों एक चीज है। और एक बात याद रखिएगा, ईमान और अमल सालिह दोनों जरूरी है। आपके पास ईमान है, अमल सालिह नहीं, बेकार है जिंदगी आपकी।
आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं, बेकार है आपकी जिंदगी। चलिए बंबई, हम आपको दिखाते हैं टाटा हॉस्पिटल। चलिए स्टेशनों पर गर्मियों के दिनों में हम आपको दिखाते हैं। चलिए गुरुद्वारे दिल्ली में संडे के दिन हम आपको दिखाते हैं कितना बड़ा लंगर करते हैं सिख, गरीबों को एक तरफ से एक लाइन से खाना खिलाते हैं। चलिए टाटा हॉस्पिटल, कैंसर हॉस्पिटल बॉम्बे में, हम आपको दिखाते हैं कि कितने बड़े बड़े अमीर लोग गरीबों की मदद करने के लिए लाख 2 लाख रुपए की चेक लेके घूमते हैं, फल फ्रूट लेके आते हैं, खाना ट्रकों में भर के लाते हैं और वहां कैंसर पेशेंटों में तकसीम करते हैं, उनके इलाज का इंतजाम करते हैं। देखा जाए तो बज़ाहिर कितना अच्छा काम है, लेकिन अमले स्वालेह तो है लेकिन ईमान नहीं उनके साथ, इसलिए बेकार है। हमारे पास ईमान है लेकिन अमले स्वालेह नहीं है। नाम मोहम्मद असलम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजहर, मोहम्मद फला, हमारे नाम बहुत अच्छे हैं। पूछो कौन हो? मोमिन है। मरने के बाद जलना पसंद करोगे या दफन? नहीं, दफन होंगे। सब कुछ अपना ईमान है लेकिन अमले स्वालेह नहीं है हमारे पास। कई जगह मिसालें दी, आपको देता हूं। ईमान और अमले स्वालेह की मिसाल बिल्कुल इस तरह है जैसे मोबाइल और सिम। आपके पास मोबाइल है लेकिन सिम नहीं है तो मोबाइल किस काम का? आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं तो सिम किस काम की? साहब मौलाना बहुत महंगा मोबाइल है मेरा, 1 लाख रुपए की कीमत है, एप्पल का मोबाइल है मेरा। 1 लाख का नहीं 5 लाख का ले लो, लेकिन उससे क्या करोगे? हेलो हेलो करके देखो, नहीं, जब तक सिम नहीं डालोगे। आपके पास सिम है लेकिन मोबाइल नहीं। बहुत बैलेंस है जजी साहब, 20,000 रुपए है इसमें। अरे 50,000 हो, 1 लाख रुपया बैलेंस है तुम्हारे सिम में, लेकिन उस सिम को कान में लगा के हेलो हेलो बोलोगे। उस सिम को जब तक मोबाइल में नहीं लगाओगे, सिम काम की नहीं। मोबाइल में सिम नहीं डालोगे तो मोबाइल काम का नहीं। ये दोनों चीजें सिम और मोबाइल की तरह हैं। आपके पास ईमान है, अमले स्वाले नहीं, बेकार है ईमान। और आपके पास अमले स्वाले है लेकिन ईमान नहीं तो बेकार है अमले स्वाले। मैंने इसकी मिसालें दे दी आपको, दोनों जरूरी है। और एक बात और बता दूं, सुनिए गौर से। ईमान लो, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और अमले स्वालेह उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। आपने मुआहिदा कर लिया लेकिन उस मुआहिदे के मुताबिक अगर आपने काम नहीं किया तो मुआहिदा बेकार। मसलन सुनिए, मैं एक मजदूर हूं, आपने मुझे अपने घर बुलाया, जर्जी साहब मेरी ये दीवार खड़ी होना है, क्या आप इस दीवार को खड़ा करेंगे? कि क्या मजदूरी लेंगे? मैंने कहा ठीक है, 1,000 रुपया डेली। सुबह 9 बजे आऊंगा, 5 बजे मैं चला जाऊंगा। 9 से 5 तक ड्यूटी, 5 दिन में आपकी दीवार में पूरी खड़ी कर दूंगा। आपने कहा डन, 1,000 रुपए डेली देंगे हम, 5 दिन में हमारी दीवार आप खड़ी कर देना। मैंने कहा ठीक है, मुआहिदा हो गया। अब सुबह 9 बजे मुझे जाना चाहिए था, नहीं गया। दूसरे दिन भी नहीं गया, तीसरे दिन भी नहीं गया, चौथे दिन भी नहीं गया, 5वें दिन भी नहीं गया। जब 5 दिन पूरे हो गए, 6ठे दिन में गया अपने मालिक के पास, साहब मजदूरी दीजिए, आज 6ठा दिन है। मालिक क्या कहेगा? अबे किस बात की मजदूरी लेने आया है? साहब उस मुआहिदे की जो हमारे और तुम्हारे दरमियान तय हुआ था, हमारे और तुम्हारे दरमियान तो ये तय हुआ था कि 5 दिन आप काम करेंगे, 5 दिन में हम आपको 5,000 रुपए देंगे। हुआ था ना? हाँ, तो मुआहिदा तो हुआ था ना, इकरार तो मैंने किया था ना कि हाँ मैं काम करूंगा। जी, तो लाइए ना 5,000 रुपए। कहेगा भाई पागल है क्या, इकरार किया था तो आया क्यों नहीं? अरे मैं नहीं आया इससे क्या मतलब, मैंने इनकार तो नहीं किया था ना कि नहीं आऊंगा, मैं इकरार कर रहा था कि मैं आऊंगा, किया था आऊंगा, और मुआहिदा हमारे तुम्हारे दरमियान तय हो चुका था। आप दीजिए मुझे
5,000 रुपया, आप दे देंगे मुझे? नहीं, आप उल्टा डांटेंगे और कहेंगे कमीने जब तुझे नहीं आना था तो पहले बता देता, 5 दिन तक मैंने तेरा इंतजार किया, दूसरे को मैं काम पे लगा लेता, क्यों नहीं आया? मेरा नुकसान और हुआ। मेरे भाइयों, पता चला कि सिर्फ मुआहिदा काफी नहीं है, मुआहिदे के ऊपर जो आपने करार किया है वो इकरार भी काफी नहीं है, बल्कि मुआहिदे के मुताबिक आपको काम करना था। आपको 9 बजे जाना था और 5 बजे तक उसकी दीवार को खड़ा करना था। आपने ये काम नहीं किया, इसलिए आपको इस बात की मजदूरी नहीं मिलेगी। ईमान एक मुआहिदा है, सुनिए, ईमान एक मुआहिदा है और उस मुआहिदे का इकरार और उसका अमली नतीजा अमले स्वाले है। आपने ईमान कबूल कर लिया, इस्लाम ले आए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। आपने इस बात का इकरार कर लिया कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब आपने इस बात का भी इकरार कर लिया कि इस मुआहिदे के बाद अब हमें 5 वक्त की नमाज पढ़नी है, रमजान के पूरे महीने के रोजे रखना है, हमें हज भी करना है, हमें ज़कात भी देना है। आपने इस मुआहिदे के साथ साथ ये करार भी कर लिया, लेकिन नमाज भी नहीं पढ़ी, रोजा नहीं रखा, हज नहीं किया, आपने ज़कात भी नहीं दी और कल क़यामत के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होकर क्या आप जन्नत मांग सकते हैं? क्या आप ये कह सकते हैं कि अल्लाह मुझे जन्नत दे, क्योंकि मैंने ईमान कबूल किया था, मैंने मुआहिदा किया था, मैंने इस बात का इकरार किया था कि अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। अल्लाह क्या कहेगा? मेरे बंदे, ये मुआहिदा था, तूने कबूल किया था, लेकिन इस मुआहिदे की जो शर्त थी 5 वक्त की नमाज, रोजा, हज, ज़कात, अच्छे अमाल, नेक काम, वो तुमने नहीं किए। अल्लाह नहीं किए तो क्या हुआ? इकरार तो किया था, इकरार तो किया था, नमाज पढ़ना चाहिए, मानता तो था, रोजा रखना चाहिए, मानता तो था, किया नहीं तो क्या हुआ? लेकिन इकरार तो था, तस्लीम तो करता था, इसलिए मुझे तू जन्नत दे। क्या अल्लाह जन्नत दे देगा? नहीं, ईमान एक मुआहिदा है, अमले स्वाले ये उस मुआहिदे का अमली नतीजा है। जब तक हम अमले स्वाले नहीं करेंगे मेरे प्यारे साथियों, मुआहिदा पूरा नहीं होगा। आप सिर्फ उस मजदूर की तरह मत बनिए जो अपने मालिक से इकरार करता है कि हम कल 9 बजे आएंगे और 5 बजे तक हम काम करेंगे, और नहीं आए और शाम को मजदूरी लेने पहुंच गए, और ये कहो कि हाँ वादा तो था, इकरार तो किया था। सिर्फ इकरार की वजह से आपको मजदूरी नहीं मिल सकती है, सिर्फ ईमान कबूल कर लेने की वजह से, सिर्फ मुआहिदा एक्सेप्ट कर लेने की वजह से और मुआहिदे पर मुआहिदे का इकरार कर लेने की वजह से हमें जन्नत नहीं मिलेगी। जब तक कि हम 9 बजे से लेकर 5 बजे तक ड्यूटी न करें तो हमें 1000 रुपया नहीं मिलेगा। उसी तरीके से जब तक हम इस ईमान के जो मुतालबे हैं जब तक हम पूरा नहीं करेंगे, हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन भी जन्नत नहीं देगा। ईमान अपने अंदर पैदा कीजिए और ईमान के साथ साथ अमल स्वाले की पाबंदी कीजिए। मेरे प्यारे साथियों, सहाबा किराम की पूरी जिंदगी ईमान के साथ और अमल स्वाले के साथ भरी पड़ी है। हजरत अबू तलहा अंसारी को देखिए, बुढ़ापे में लाठी टेक कर मस्जिद में जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लेकिन कुरान की किसी सहाबी के जबान से ये आयत सुन लेते हैं, इनफिरू खिफाफन व सिकालन वजाहिदू बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम फी सबीलिल्लाह। इनफिरू खिफाफन व सिकालन, हर हाल में अल्लाह की राह में निकलो, जंग के लिए जाओ। खिफाफन व सिकालन, चाहे दुश्वारी हो या परेशानी, आसानी हो या परेशानी, हर हाल में तुम्हें जंग के लिए निकलना है, हर हाल में तुम्हें निकलना है। हजरत अबू तलहा अंसारी बुढ़ापे में है, लाठी टेक कर चलते हैं, कमर झुक चुकी है, अपने बेटों से कहते बेटो हमारे ये घोड़ा तैयार करो, मैं मैदान जंग में जाऊंगा। बेटों ने कहा अब्बू आप अल्लाह के नबी के जमाने में लड़े, अबू बकर के जमाने में भी लड़े, उमर फारूक के जमाने में भी लड़े, अब उस्मान गनी का जमाना है,